बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्सिस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्सिस कालिब जो आप पहले भी मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। व्हाट इज मैट्रिक्स? आर रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स enclosed by a pair of brackets such as, ये देखिए, मैट्रिक्स a rectangular array of numbers enclosed by a pair of brackets is called matrix. And the horizontal lines of numbers are called rows and the vertical lines of numbers are called columns. These given two are examples of matrices. Order of matrix: if a matrix has m rows and column, then its order is m by n. m cross n लिखते हैं हम, इसे पढ़ते हैं m by n. In above matrices, first matrix has order 2 by 3 and the matrix 2 has order 4 by 3. 4 rows and 3 columns. Addition of matrices: two matrices A and B can be added if A and B have the same order. The sum of A and B is written as A plus B. कब होते हैं two matrices conformable for addition? When two matrices have same order. The sum of A and B is written as A plus B. Can be obtained by adding their corresponding elements. Corresponding element mean first element first में, A11 A1 B11 में ऐड होगा, A12 B12 में, A21 A2 B21 में, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में, सेकंड सेकंड में, रो का थर्ड थर्ड में, इस तरह, ठीक। और इसे लिखते हैं A प्लस बी. सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस: a matrix A and B can be subtracted from a matrix B can be subtracted from a matrix A if A and B have the same order. कब होंगे दो matrices conformable for subtraction? When they have the same order, and we can write it A as A minus B. We subtract each element of matrix B from the corresponding element of matrix A. If A is equal to this and B is equal to this, देखें अगर ऐड करना हो तो कैसे ऐड करेंगे? A प्लस बी. अगर माइनस करना तो A माइनस बी, ठीक। यहाँ A माइनस बी आएगा. स्केलर मल्टीप्लिकेशन: if A matrix of is a matrix of order m by n and K is a scalar, then the product K and A denoted by Ka is the matrix formed by multiplying each entry of A by K, and this process is called the scalar multiplication. A का हर एलिमेंट K से मल्टीप्लाई होगा. अगर 2 से मल्टीप्लाई करना है 2A, कैसे होगा? 2 को पहले एलिमेंट के साथ भी, दूसरे तीसरे जितनी भी एंट्रीज हैं सबके साथ मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस: टू मैट्रिसेस को आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है? टू मैट्रिस A and B are said to be conformable for the product if the number of column A is equal to the number of rows of B. हम पॉइंट टू बी नोटेड, हम पहले मैट्रिक्स की रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते होते हैं, लेकिन हम लिखते कैसे हैं? द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी. इफ ए इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n and b is the matrix of order n by p, then we can find AB. And order of matrix, resultant matrix C will be m cross p. m by n और n by p ऑर्डर जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? m by p. A and B are two matrices. They have multiplied 2 1 को 2 1 से, इस पहली रो को पहली रो से, फिर पहली रो को दूसरे, पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, फिर पहली रो को तीसरे कॉलम से, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से. ये सारा मल्टीप्लाई किया हुआ है. यू हैव स्टडी दिस आल्सो इन मैट्रिक. ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स: इफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, then an n by n matrix obtained by
Interchanging the rows and columns of A is called the transpose of A, and it is noted by A transpose. For example, if A is the matrix 1 2 3 4, then its transpose be 1 2 3 4. We will say that transpose of matrix obtained by interchanging the rows and columns of A. Interchanging the rows and columns of A. Determinant of A 2 by 2 matrix. We can associate a unique number with every square matrix A over R or C. This number is known as the determinant of A. जैसे ए बी सी डी एक मैट्रिक्स है, तो इसके डिटर्मिनेंट को हम मॉड में लिखेंगे, ए मॉड. कैसे? ए बी सी डी है ए डी माइनस बी सी, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. A matrix A is singular if A mod is equal to 0. A matrix is non-singular if A mod or determinant of A is not equal to 0. Adjoint of 2 by 2 matrices, the adjoint of of the matrix ABCD is noted by A and is noted by adjoint of A ADG. ADJ लिखेंगे हम, adjoint of A and is noted by ए और डी की आपस में जगह बदल देंगे और माइनस बी इनके साइन, बी और सी के साइन. कैसे? ए और डी को इंटरचेंज कर देंगे, आपस में इनकी प्लेसेस चेंज कर देंगे और डी बी और सी के साइंस चेंज कर देंगे. अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव. इनवर्स ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स. लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स of order 2 if there exists a matrix B such that AB is equal to BA, where I2 1 0 0 1, then B is called the multiplicative inverse of A. तो अगर AB is equal to BA is equal to I2, then B is called the multiplicative inverse of A and it is noted by A inverse. B क्या होगा? A inverse. A inverse हम कैसे फाइंड करते हैं? adjoint of A over determinant of A. अब ये एक्सरसाइज 3.1 है, इसके क्वेश्चन है इफ़ ए एंड बी देन शो दैट 4a minus 3a is equal to a. तो हम a को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 4a में से माइनस कर लेंगे 3a. तो इसका आंसर क्या आएगा? a. राइट हैंड साइड ये देखिएगा. टू शो दैट दिस इज आल्सो एज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1. इफ a इज इक्वल टू आयोटा 0 1 माइनस आयोटा शो दैट a रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू I2. तो कैसे हो? आई स्क्वायर है आई, देखिए I2, आई स्क्वायर नहीं, यहाँ मिस्टेकली आई स्क्वायर लिखा हुआ है I2. तो कैसे होगा? ए स्क्वायर निकालने के लिए ए को मल्टीप्लाई कर देंगे ए से, फिर इसी तरह A4 निकालने के लिए ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे ए स्क्वायर से. तो आंसर आ जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2. इक्वल मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सेट टू बी इक्वल इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल. 2 मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे? जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे. देखें, फाइंड एक्स एंड वाई इफ दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस. ये तो 2 मैट्रिसेस हैं, तो कब इक्वल होंगे? जब पहला एलिमेंट पहले के, दूसरा एलिमेंट दूसरे के, तीसरा तीसरे के और चौथा चौथे के. इसी तरह इनकी इक्वलिटी के रूल से हम लिख लेंगे एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 2. यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू आ जाएगी. 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 2. यहाँ से हमें वाई की वैल्यू मिल जाएगी. आल्सो 2 मैट्रिसेस आर एज द 2 मैट्रिसेस आर इक्वल. ये देखें, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल. यहाँ भी ये एक्स प्लस 3 को वाई की इक्वल लिख लेंगे, 3y माइनस 4 को 2 एक्स के, और इनको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे. इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस 4a माइनस 3b, a प्लस 3 इंटू बी माइनस ए. पहले b माइनस ए को 4 से मल्टीप्लाई और b को 3 से, उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. इसी तरह b माइनस ए निकालेंगे, पहले उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐड कर देंगे ए में. फाइंड एक्स वाई इफ दिस इज इक्वल टू दिस. पहले हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे.
एंड में हमारे पास ये देखें 2 मैट्रिसेस इक्वल आ गए। अब इक्वलिटी की डेफिनेशन यूज़ करते हुए हम इसे क्या कर लेंगे, इसमें से x और y की वैल्यू एलिमिनेट कर लेंगे। इक्वलिटी क्या कहती है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो 2x किसके इक्वल होगा, -2 के, क्योंकि 2x की जो है प्लेस वही -2 की है। x + 2y किसके इक्वल होगा, 3 के। y प्लस किसके इक्वल होगा, 6 के। तो देखिए y + 4 = 6, इससे y की वैल्यू 2x = -2, इससे x की वैल्यू आ जाएगी। इफ़ a = दिस, शो दैट लैम्डा इंटू म्यू ए = लैम्डा इंटू म्यू ए। इसी तरह टू शो लैम्डा इंटू म्यू ए, आप पहले ए लिख लेंगे, AIJ 3/3, यानी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, 3/3 मैट्रिक्स। हम अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लैम्डा इंटू म्यू ए, म्यू अंदर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन लैम्डा हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, लैम्डा म्यू हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम देखेंगे दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, नो लैम्डा म्यू ए = लैम्डा म्यू ए। अब लैम्डा प्लस म्यू ए = लैम्डा ए प्लस म्यू ए। बेशक एलिमेंट को ऐड करके डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करें, या फिर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके स्केलर से ऐड करें, आंसर सेम आएगा। ओके, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ए गिवन है, बी गिवन है, उनके ऑर्डर गिवन है। शो दैट लैम्डा ए प्लस बी = लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी। कैसे होगा, बी की 2/3, 2 रोज और 3 कॉलम्स। ए कैसे, ए जो है 2 रोज और 3 कॉलम्स, 2 रोज A11, A12, A13, A21, A22, A23। इसी तरह B11, B12, B13, B21, B22, B23। हम कैसे शो करेंगे, A + B को ऐड करेंगे और लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हम A + B को ऐड करेंगे, लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम लैम्डा को A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और लैम्डा को B के साथ, और दोनों को ऐड करेंगे, सेम आंसर आएगा। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। इफ़ A = दिस एंड A² = दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ B। ए गिवन ए है, इससे A² निकाल लें, A के A² गिवन है, दोनों को इक्वल रखें और A और B की वैल्यू निकाल लें। इफ़ A = दिस एंड A² = दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। गिवन A है, इससे A² निकालें, दूसरा भी A² है, तो दोनों इक्वल होंगे, इससे A और B की वैल्यू निकाल लें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ A = दिस एंड B = दिस, then show that A + B transpose = A transpose plus B transpose। इट मीन आप A + B पहले करेंगे, फिर ट्रांसपोज लेंगे, अलग-अलग ट्रांसपोज लेंगे, ऐड करेंगे, तो इक्वल आना चाहिए आंसर। देखें A + B आपने कैलकुलेट किया, फिर उसका ट्रांसपोज लिया, उसकी रोज़ को कॉलम में चेंज कर दिया, फिर A ले लिया, A का ट्रांसपोज लिया, रोज़ को कॉलम में, B लिया, B का ट्रांसपोज लिया, रोज़ चेंज इनटू कॉलम। नाउ A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, we obtain the answer which is similar to A + B transpose. So left hand side is equal to right hand side. Find A³ if A = this. A multiplied by A gives A², then A³ is equal to A² multiplied by A gives A³, which is 0, 0. Find matrix X if X is equal to this. Okay, X into this, X is equal to B। हम A को दूसरी तरफ ले जाने के लिए we will multiply with A inverse on both sides। xi is equal to B A inverse, xi is equal to x B A inverse। To find A inverse, here A is equal to
We will calculate determinant of A, adjoint of A, then A inverse is equal to adjoint of A over A determinant. Put the value in equation 1. X is equal to A, B A inverse. Then we multiply B and A inverse and get this answer, which is required matrix. Similarly, question number 12 is similar to 11. And find matrix A if. Also question number 13 is similar to 12. Question number 14. Show that R cos two matrices हैं is equal to R I आइडेंटिटी मैट्रिक्स. मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें आइडेंटिटी यूज़ करेंगे और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ओके, देखिए R 0 0 0 R 0 0 0 R, तो 1 R कॉमन लिया. R आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3. These are the 14 questions of exercise 3.1. You have practiced all these questions.